Which reason you are coming, sir? B Sheva. Tell us the situation there. What kind of situation you are coming from? In B Sheva situation was like not very bad, but yeah, there was continuous missile attacks over there. But yeah, no such infiltration in B Sheva. Sir, So it's okay. this was the first flight that you boarded, the special flight. Yeah. What kind of efforts were there by No. Indian? Indian authorities really did a brilliant effort. The evacuation was very smooth, and thanks to the Indian government. It was the barbaric attack. If you can tell us about the situation there, if you can describe the situation. On Saturday it was very bad, but as the day proceeded, it was normalized. But in my area, in B Sheva, near the border areas, it was really bad. So What do you think about the situation? Is it going to resolve very soon? no, it will take 1 month, 2 months. 1 month, 2 months. And are you going to be back in Israel? Yeah. I'm coming from Tel Aviv, and the situation in Tel Aviv is not too bad as compared to the south or to the north, but it's still scary. Okay, you belong to Punjab, if I'm not wrong. You were studying there, and from since how long you were there? So it's almost been like 2 years, and I'm doing masters. I hope everything gets well soon, and I'll be back for my studies. It is like really good. Like we filled a form, and the next day they came, and it's been awesome, man. So two important things, in fact, the highlights. One thing that they had full confidence in Indian government. In fact, they are applauding the efforts by the Indian authorities. In fact, the very first flight that was arranged. And the second thing is that they are hoping that this condition will get resolved soon, and they'll be back. So these are the two highlights of this particular comeback. In fact, and I'm standing at T3 of IGI airport, and here we have the first flight landed from Israel. We know that how the barbaric attack was launched by Hamas, and after that everyone was hoping first for the well-being of Indian citizens as well, and this is the reason why Operation Ajay was launched. And today we have around 212 passengers coming from Israel directly, and the first flight has landed here at around 5:53. We had a word with a number of people, and all of them are saying that they were fully confident that Indian government is going to evacuate. Also, they are talking about Israel, that how safe is the place after the barbaric attack. On the very first day they were quite surprised after the attack, but after that several arrangements were made by the Israeli authorities, and after that, in fact, Indian government was in constant touch with not only the passengers, not only the students, but also their relatives here in India. In fact, if I can show you the visuals, this is the visuals where you see people from all across India have come, and in fact, relatives from all across India, they are here to basically receive those students, those citizens who were there. In fact, we should not say stranded, but yes, they were living there in Israel. Some of them were studying, some of them were doing their PhDs. In fact, some of them were into the jobs. But now, in fact, Operation Ajay was launched, and after that, this was the first flight that got landed here at 5:53. सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, कौन से रीजन में रह रहे थे और क्या कुछ सिचुएशन है वहाँ पर अभी? नहीं, मैं जो रीजन पे रह रही थी वो वेस्ट बंगाल टेरिटरी के अंदर है, लेकिन वो वहाँ पे सेफ थे हम लोग. इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं थे हमारे यूनिवर्सिटी में, लेकिन अदर्स जो यूनिवर्सिटी थे लाइक बेनगुरियन एयरपोर्ट के आसपास, जो बेनगुरियन यूनिवर्सिटी और तेल अवीव यूनिवर्सिटी के आसपास, वहाँ पे थोड़ा बहुत हो रहे थे, थोड़ा ऐसे मतलब क्रिटिकल कंडीशन थे, तो उनके सारे स्टूडेंट्स को अब तक वो वहाँ से बाहर लेकर आए. लेकिन हम आरियल यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट अभी तक तो सेफ है, तो इतना कुछ क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है. भारत में कहाँ से हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ. वेस्ट बंगाल से हैं, तो मम्मी पापा से यहाँ बातचीत हो रही थी, उनका डर था, आपको भी? तो बहुत डर लगा. तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा है, तो हमें आना ही था, और मैंने बहुत सारी फ्लाइट्स टिकट्स भी बुक की थी, तो वो बार कैंसिल हो रहे थे, 2-3 बार रिपीटेडली. तो घर पे सब परेशान हो गए कि कैसे वापस आओगे, ये होगा. तो हमने क्या किया, सब मिलके एम्बेसी ने मेल किया, तो उन्होंने फिर हमारे लिए ये सारी चार्टर प्लेन अरेंजमेंट किया. और अभी तो ये फर्स्ट ट्रायल फ्लाइट था, इसके बाद उन्होंने और भी ट्रायल फ्लाइट आज से शायद चालू करेंगे. फिर वहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब आ जाएंगे अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अभी कहा जा रहा है कि बहुत बर्बरतापूर्ण ये जो हमला था वो था, और एक तरह से सरप्राइज एलिमेंट था, क्योंकि किसी को पता नहीं था, इंटेलिजेंस फेलियर, तमाम तरीके. आपने जब सुना पहली बार कि ऐसा कुछ हुआ है,
उस टाइम का अगर एक बार आप सेंटिमेंट्स जो थे, उस टाइम जो फीलिंग थी उसको डिस्क्राइब कर सकें, कब आपने सुना कि अटैक हुआ है और क्या कुछ उस टाइम के कंडीशंस थे वहाँ पे आपके इलाके में? नहीं, मेरे इलाके में कुछ प्रॉब्लम नहीं थे क्योंकि वो जहाँ पे अटैक हुआ था वो बॉर्डर के साइड में थे, तो वो बहुत दूर है वेस्ट बैंक से, तो वहाँ पे कुछ हमें इतना प्रॉब्लम नहीं लगा। बिकॉज यू वर लिविंग इन द सेम कंट्री, यू नो, डिड यू हैव सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग कि शायद यहाँ तक भी आ जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइट सिक्योरिटी था और ये घटना के बाद पूरे कंट्री में बहुत अच्छे से उन्होंने सिक्योरिटी मतलब मैनेज की और सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनसे भी ज्यादा हमारा ख्याल रखा, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। ऑल्सो ये फर्स्ट फ्लाइट है, आप खुद ही कह रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट है, तमाम तरीके के अरेंजमेंट दिए गए। क्या कुछ एफर्ट्स को बताना चाहेंगी इंडियन अथॉरिटीज के? कांस्टेंट टच में थे आपने बताया, लेकिन फर्स्ट फ्लाइट अरेंज करी है, ऑपरेशन अजय लॉन्च हुआ है, और भी फ्लाइट्स आनी है अभी। व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स वर पुट इन बाय द इंडियन अथॉरिटीज एंड व्हाट यू हैव टू से ऑन दोज एफर्ट्स? वो लोग तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और हमने जैसे एम्बेसी ने में रजिस्ट्रेशन मेल की थी, उन्होंने उसके हिसाब से सबका रजिस्ट्रेशन मेल रखा है और उन्होंने ऐसे मतलब अरेंजमेंट कर रहे हैं और शायद लगता है इसके बाद सब नॉर्मल होंगे क्योंकि ये पहली फ्लाइट थी, किसी को इतना पता नहीं था और आगे से सब अच्छा ही होगा। तो वहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट हूँ, अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया तो मैं वापस जाऊँगी। कहाँ से आ रहे हैं आप? इजराइल में कौन से रीजन से आ रहे हैं? हम लोग सदर्न पार्ट से आ रहे हैं। हाँ। और वहाँ पे सिचुएशन कैसी है बताइए? सिचुएशन अब तो काफी अंडर कंट्रोल है, बट फिर भी हो रहा है। तो आप वहाँ नौकरी पेशे से गए थे? कितने सालों से? नहीं, हम लोग 2 साल से हैं, हम तो रिसर्चर हैं वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे रिसर्च पोस्ट का बच्चा भी है, कहीं ना कहीं फैमिली की चिंता थी? हाँ, ये वहीं पे पैदा हुआ है। अच्छा, वहीं पैदा हुआ। तो कहीं ना कहीं चिंता थी या घर वालों के साथ? इसी की वजह से हम लोग आए हैं, इसी की। The thing is that when we woke up on Saturday morning, there was a lot of siren and there was missiles. Especially in Jerusalem, we didn't see any bombs or a huge attack, but in the southern part of Israel, there was a huge attack, and of course, lots of Israeli people were killed and taken hostage. Anyway, we revived from that gradually, but at the same time, because the Israeli government has declared a war, so there was a lot of confusion and lot of anxiety, like for us, for the Indian students, that what we would do. And we are really grateful to the Ministry of External Affairs, Prime Minister of India, and also to Jaishankar sir for arranging everything for us and making this operation a very successful thing for the entire evacuation process. मैं सेंट्रल इजराइल से आ रही हूँ और साउथ के कंपेयर में और नॉर्थ के कुछ रीजन के कंपेयर में सेंट्रल की सिचुएशन काफ़ी बेटर है। हमें जो सायरन्स का जो फ्रीक्वेंसी है, ऑन एन एवरेज आपको 2 सायरन सुनाई देते हैं और वो सायरन का ड्यूरेशन, क्योंकि हमारा सेंट्रल लोकेशन है तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है, हमें 9 मिनट का टाइम मिलता है आपको अपने लोकेशन से नियरेस्ट शेल्टर के तरफ जाने का, और शेल्टर की आपको हर जगह शेल्टर्स मिल जाते हैं। सेंट्रल इजराइल में थी, टेल अवीव में, तो वहाँ पे मतलब ऐसे एकदम वॉर सिचुएशन नहीं है, पर सायरन्स काफ़ी बज रहे थे और मतलब मिसाइल्स आ रहे थे, इंटरसेप्ट हो रहे थे, तो मतलब इट इज़ अ बिट स्कैरी। सो बेसिकली अटैक स्टार्ट हुए थे सैटरडे को 6:30 AM से। हाँ, हमारे फ़ोन एंड आउटसाइड में रॉकेट सायरन का अलर्ट आता है 6:30 AM पे, और हम लोग को अराउंड 90 सेकेंड मिलता है शेल्टर पे जाने के लिए। और उसके बाद से लेकर अभी तक एवरी डे अराउंड 4 to 5 सायरन्स हम लोग को सुनने को मिलता है, और मोस्ट ऑफ द सायरन्स जो रॉकेट के होते हैं वो मोस्टली आयरन डोम से इंटरसेप्ट हो जाते हैं, तो हम लोग को शेल्टर में बस उसके इंटरसेप्ट होने की आवाज़ सुनाई देती है। मेरे जितने इजरायली स्टूडेंट या दोस्त थे यूनिवर्सिटी में, मोस्टली ऑल ऑफ देम जो रिजर्व फोर्सेस में थे, उनको नॉर्थ और साउथ तेल अवीव इजराइल के अराउंड ड्यूटी के लिए बुलाया गया है, आर्मी ड्यूटी के लिए। सो यस, और वो सारे काफ़ी देशभक्त हैं अपने देश के लिए, तो काफ़ी जोश है, एंड होपफुली थिंग्स सब जल्दी सही हो जाए।